11 बेटा. Now start question number 12. बच्चे wherever necessary I will do it. Rest you have to do. If you have any problem we can discuss. And initial value given y equal to, this is initial value, means whatever we are solving this differential equation we will get curve, general solution. That general curve passes through this initial value. Then you have to replace value of x as 2 and y by 0, so that we will get arbitrary constant. Then substitute in general solution, you will get a particular solution. That's why they give this initial value. Now what we can do here, dy by dx, that is equal to 1 upon x into x square minus 1. So now dy equal to, we can write 1 upon, so that is x into x square plus x square minus 1 into dx. Take the integration both side. Beta, how to do integration? बच्चे how to do integration? मैम x स्क्वायर कॉमन ले लो मैम. x स्क्वायर का कॉमन, x स्क्वायर कॉमन ले लो. तो लेने से वो ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके, सब्स्टिट्यूशन दे सकते हो. अदरवाइज यू कैन गो फॉर पार्शियल, यू कैन गो फॉर यस मैम. ओके फाइन. सो इसका एक डिग्री कम करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करना है, कर लो बेशक. नहीं ये यू कैन डू इंटीग्रल dy इक्वल टू, आपने जो बोला वो भी दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड आइडिया. सो अदरवाइज दिस इज इजीली यू कैन फैक्टराइज x प्लस 1. सो देन यू हैव टू गो फॉर पार्शियल करने के बाद, अदरवाइज आपने पता है x स्क्वायर बाहर निकालेंगे x क्यूब हो जाएगा. सो x क्यूब इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा. यू कैन गिव सब्स्टिट्यूशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा. तब भी आप फॉलो कर सकते हो, आपका चॉइस बेटा जैसे भी जाना चाहते हो. सो एनी हाउ, सो थ्रू पार्शियल अदरवाइज लाइक दिस यू कैन डू इट. जस्ट अ मिनट, लेट मी फाइंड आउट द टेस्ट. Okay, so you have to do, I am not doing beta. If you have any problem then you can discuss with me. Now listen, next question number I am taking question number 13. 13th question देखना, ये 13th question I am doing it completely. question complete करती हूँ. dy by dx equal to a, initial value given y equal to 2 and x is equal to what is given 0. Anyhow, if the differential coefficient involved in to go inverse to go, we cannot do integration directly. First you should remove this to go, then only we can find a solution of this y. So what I am doing here, dy by dx equal to, I am taking cos is that side, so cos inverse a. Now if I do variable separable, then dy equal to cos inverse a into what we get at dx. Now take the integration of both side. How to do integration this side? RHS. हम सीधा हो जाएगा मैम, x cos इनवर्स a आ जाएगा. एग्जैक्टली, वेल डन बेटा. cos इनवर्स a इज अ कांस्टेंट, गलती से बाय पार्ट्स ना चले जाए. सो y इक्वल टू, सो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा. cos इनवर्स a इज अ कांस्टेंट, माइंडेड, वेल डन. नाउ एनी हाउ, सो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू गिवन क्या है आपके पास, y इक्वल टू 2 and x. दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन. So now if I substitute here, so that is equal to x is 0, so completely 0, 0 plus c. This implies c ka value is 2. Therefore we will get particular solution. So that is y equal to x cos inverse a, x cos inverse a plus 2. This is your final particular solution. Are you clear? Now see beta, yes, question number 14. Yes, question number 14. 14 is also homework, but let me explain. dy by dx that is equal to y into tan x. Now anyhow, so we can do variable separable. dy by y equal to tan x into dx. This is simple integration. ये तो क्या इंटीग्रेट होगा बेटा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये तो log y आ जाएगा. और tan x का इंटीग्रेशन कैन यू रिमेम्बर? log of secant x. Yes, well done. log sec x plus log c कर देना. Then initial value रखो, c का वैल्यू निकालो, substitute करो, you will get a particular solution. Now see बेटा question number 18. Okay, ma'am. Yes, question number 18 देखना बेटा. Find the equation of a curve passing through. इसका मतलब कर्व मतलब जो जनरल सॉल्यूशन है वो पास कर रहा है 0 0, इनिशियल वैल्यू गिवन है. whose differential equation is y dash equal to क्या देगा बेटा, y dash equal to ex into sin x. So ex into sin x, y dash मतलब what, dy by dx, that is equal to ex into sin x. Yes, do variable separable, so then dy equal to, we will get ex into sin x into dx. Take the integration both side. ये कैसे इंटीग्रेट करोगे बेटा, ये बड़ा पार्ट by parts.
by parts. By parts. So which one By is the parts. first? So this one is the first, this one is the second. So y equal to first function sin x into integral of second function ex. So if this implies this LHS we will get y equal to integral ex into sin x into dx. That is equation number 1. Because I will get again the same function, that's why I am taking the question. So first function sin x into integral of second function ex minus integral डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन का डिफरेंशिएशन माइनस cos, सो प्लस हो जाएगा बेटा cos x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ex into dx. अगेन क्या करेंगे बच्चे इसमें, अगेन क्या करोगे, I1 लेके करेंगे बाय पार्ट्स. अगेन बाय पार्ट्स करेंगे, है ना. ये फर्स्ट हो जाएगा, Yes, ma'am. सेकंड हो जाएगा. सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx. ये तो आपका गिवन आ गया. सो इंस्टेड ऑफ दिस प्लेस वी कैन राइट y इक्वल टू ex sin x and then plus ex cos x and then we can write plus minus instead of this y plus c. Again if you are doing continuing this by parts, again you will get this step, again you will get this step. So instead of this you have to write it y, that is given आ गया आपके पास. So 2y equal to ex into sin x and then plus ex into cos x. Then plus c y equal to, you will get the result. Anyhow initial value given क्या है, this is passing through 0 0. So replace y by 0, x by 0, sin 0 0 हो जाएगा बेटा. e power 0 1 होगा but sin 0 0 हो जाएगा. Again here e power 0 into cos 0 1 हो जाएगा. That's keep your mind, anything power 0 1. c का वैल्यू आ जाएगा -1. So therefore particular solution y equal to 1/2 into, I am taking this to that side. So 1/2 into ex sin x and then plus ex cos x and then instead of c is -1. This is your final answer. Are you clear बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. मैम बट जो नीचे e cos x है मैम, वो cos x अपने पावर में लिख दिया. Okay. ex into cos x. Yes. Right on बेटा. Yes, I'm done. Yes, बेटा. No, ma'am. Third row. Okay. Yeah, baby. If you have written, then I can continue with it. Yes, I have you written.
Done, ma'am. Yes. Now next one. Next to see beta question number 16. Question number 16, what they are saying, for the differential equation, whatever given I have written there, dy by dx equal to xy into dy by dx equal to something they have given. Find the solution of curve passing through the point. Initial value given, that is 1 comma minus 1. Okay, anyhow, first do variable separable. So that is y upon, we will get y plus 2 into dy, then x plus 2 upon x. So here we can do plus 2 minus 2 करके करना है करो, और अदरवाइज डिग्री इक्वल है डिवाइड करके करना है करो, दैट इज अप टू योर चॉइस. दिस साइड तो सिंपल हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस 1 हो जाएगा, दिस अपॉन दिस में log x आ जाएगा. सो आप आराम से करके x की जगह से 1 रखो, y की जगह से -1 रखो, c का वैल्यू आ जाएगा. सब्स्टिट्यूट इन जनरल सॉल्यूशन, यू विल गेट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. बच्चे करोगे होमवर्क क्वेश्चन नंबर 16? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see better question number 17, what they are saying. Find the equation of a curve passing through 0 comma minus 2, means initial value given 0 comma minus 2. Given that at any point xy on the curve, the product of slope of tangent. बच्चे, what is the slope of tangent? Y. dy by dx. Yes, product of slope of tangent. Slope of tangent क्या होता है बेटा? dy by dx. So dy by dx और किसके साथ प्रोडक्ट y कोऑर्डिनेट at the point is equal to x coordinate. What they are saying, product of slope of tangent dy by dx with y coordinate, that is y equal to what they are saying x. So जो भी गिवन है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने पड़ेगा आपको. नाउ वेरिएबल सेपरेबल dy y into dy, that is equal to x into dx. Now take it to integration. It is so simple integration. Y square by 2 x square by 2 plus c. x की जगह से 0 रखो, y की जगह से -2, c का वैल्यू आ जाएगा. देन सब्स्टिट्यूट इन जनरल सॉल्यूशन. कर लोगे होमवर्क क्वेश्चन नंबर 17? Yes, ma'am. Now see better question number 18. Another most important question, let me read out. At any point xy of a curve, the slope of tangent is twice the slope of line joining the points contact to the point 4 comma minus 3. मतलब x और y किसके साथ ज्वाइन हो रहा है? -4 comma उसका जो स्लोप है और स्लोप ऑफ टेंजेंट का इक्वल दे रखा है. वंस अगेन बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व dy by dx इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब xy और -4 comma -3. सो दैट इज xy ये है बेटा, और -4 -3 स्लोप ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता है. y that is y2 minus y1, that is y plus 3 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? x plus 4. यही है ना स्लोप ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म. सो क्या समझ आ रहा है? समझ आए बच्चे? ये गिवन क्या है? दिस इज Yes, ma'am. यस. मैम ये समझ नहीं आया. हाँ बेटा बोलो. मैम ये क्लियर नहीं हुआ आपने अभी जो बताया. दोबारा बोलो. मैम ये समझ नहीं आया क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx इज इक्वल टू, वहां पे सेंटेंस पढ़ लेना बच्चे, आप भी बुक होगा. स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट, उसमें पहला इनिशियल पॉइंट पढ़ लेना बेटा. एट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व, xy के ऊपर एक पॉइंट ले लिया बेटा, दैट इज x, कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लिया xy, और दूसरा पॉइंट मान लो ये -4 comma -3, ये पॉइंट गिवन है. इन दोनों का जो ज्वाइन कर रहे हैं, इसका जो स्लोप है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये ना बेटा, ये मान लो टेंजेंट लाइन. डायग्राम समझ लेना वो कैसे मैं ड्रॉ कर ली. सो ये दोनों इक्वल बता रहे हैं. सो बोथ लाइंस आर पैरेलल, वैसे भी पता है आपको इक्वल होगा. सो स्लोप ऑफ कर्व तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकालना आता है, दैट इज dy by dx. वो ये 2 पॉइंट फॉर्म का स्लोप है, ये इसका इक्वल है. इसका इक्वल मतलब इसका स्लोप निकाल रही हूँ, दैट इज क्या आएगा? 3 प्लस, दैट इज y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 आ गया. y2 माइनस y1 अपॉन x. समझ आए बच्चे? यस मैम. यस. नाउ अब इसका वेरिएबल सेपरेबल करोगे, सो दैट इज dy अपॉन क्या हो जाएगा? आप भी करो होमवर्क में, मैं पूरा समझा देती हूँ. होल अपॉन x प्लस 4. नाउ टेक इट इंटीग्रेशन. ये तो log ऑफ समथिंग हो जाएगा, आपको देख के पता चल रहा है. log y प्लस 3 ये हो जाएगा log x प्लस 4 प्लस log c कर देना. इनिशियल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना. इनिशियल वैल्यू गिवन है आपके पास, दैट इज -2 comma 1. इनिशियल वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट c का वैल्यू
तो आगे आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल देना। कर लोगे क्वेश्चन नंबर 18? बोलो। यस मैम। Now see beta question number 19. Let me read first. The volume of spherical balloons being inflated changing at a constant rate. So what is given beta? पहला सेंटेंस में क्या दे रखा है? The volume of spherical balloon being inflated changing at constant rate. What is given? वॉल्यूम। No. वॉल्यूम का क्या दे रखा है बच्चे? मतलब कांस्टेंट रेट दे रखा है। सो व्हाट इज गिवन बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड, चेंज हो रहा है बच्चे, चेंज हो रहा है। आपने रेट ऑफ चेंज पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट वहां से हट गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो है ना, सो वो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आना चाहिए। सो मतलब dv/dt इक्वल टू कांस्टेंट रेट दैट्स इक्वल टू k, ये गिवन है बच्चे आपके पास। ये बात समझ आया? पहला सेंटेंस बोलो। यस मैम। यस मैम। यस इट इनिशियली इट्स रेडियस इज इनिशियली टाइम क्या होता है बेटा? टाइम 0 होगा। इट्स रेडियस दे रखा है 3 यूनिट दे रखा है, 3 यूनिट्स जो भी है सेंटीमीटर मीटर है। आफ्टर 3 सेकेंड्स इट्स रेडियस क्या हो रहा है? 6 यूनिट्स हो रहा है। फाइंड रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर 30 सेकेंड्स। आपको रेडियस ऑफ द बलून निकालना है आफ्टर 30 सेकेंड्स, वो बाद में देखेंगे। पहले मैंने गिवन को कलेक्ट कर लिया। ये जो दे रखा है ये किसका वॉल्यूम है? ये किसका वॉल्यूम है बेटा? स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 4/3 πr³। 4/3 πr³। वेल डन। सो इसको मैं dv/dt डिफरेंशिएट कर लेती हूँ एक बार, तभी मेरे पास dv/dt आ जाएगा। सो दैट इज 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू dr बाई क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। 3 कैंसिल हो जाएगा। सो dv/dt इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटा 4πr² इंटू dr/dt। बट dv/dt गिवन है बच्चे, k गिवन है। सो k इक्वल टू 4πr² इंटू dr/dt। अब वेरिएबल सेपरेबल करो, k इंटू dt दैट इज इक्वल टू 4πr² इंटू dr। नाउ टेक इट इंटीग्रेशन बोथ साइड। सो ये साइड हो जाएगा बेटा kt दैट इज इक्वल टू 4πr³ अपॉन क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा c। ओके फाइन। यहाँ पे k भी एक कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तभी तो 2 इनिशियल वैल्यू दे रखा है। सो नाउ लेट मी फाइंड आउट दिस कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट वैल्यू। पहला इनिशियल वैल्यू दे रखा है t इक्वल टू 0, r इक्वल टू 3 यूनिट्स दे रखा है। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करिए, t की जगह से 0 रखो। सो दैट इज 0 इक्वल टू r की जगह से क्या रखोगे? 3 रखोगे। सो 4 पाई, एक 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा। सो 9 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 36 पाई प्लस c। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू माइनस 36 पाई। c का वैल्यू आ गया। अब सेकेंड पार्ट में दे रखा है when t इक्वल टू 3 सेकेंड्स एंड r इक्वल टू 6 यूनिट्स दे रखा है। नाउ दैट इज k इंटू टी की जगह से 3 रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r की जगह से 6 का क्यूब। बच्चे कैलकुलेशन आपने बताना है। c का वैल्यू दे रखा है 36 पाई दे रखा है। सो मुझे k का वैल्यू निकालना है। सो k इक्वल टू सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेती हूँ। सो 4 पाई, ये 216 होगा। बच्चे आप सिंप्लीफाई करके बता दो प्लीज। माइनस 12 पाई। सो ये सिंप्लीफाई होगा, क्या होगा बेटा? ये कैंसिल हो जाएगा। सही है, 24 है बेटा। सो k इक्वल टू 16,1896 है बच्चे, सही है। आप कैलकुलेशन देख लो बेटा, 84 पाई, इजंट इट? यस मैम, सही है। सो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा? सो दैट इज k की जगह से 84 पाई। अभी भी हमें r का वैल्यू निकालना है, आफ्टर 3 सेकेंड्स बोला है। सो 84 पाई t दैट इज इक्वल टू 4 पाई r³ अपॉन 3 प्लस c इज माइनस 36 पाई। यहाँ से r का वैल्यू निकालने के लिए बेटा 4 पाई r³ अपॉन 3, सो दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 84 पाई t एंड देन प्लस 36 पाई। और अदरवाइज 4 पाई से थ्रू डिवाइड कर दो। सो r³ अपॉन 3, सो दैट इज इक्वल टू 4 पाई से डिवाइड करूँगी, ये हो जाएगा 21t एंड 4 मतलब 9 हो जाएगा ये। देन r इक्वल टू डायरेक्ट निकाल रही हूँ 63t प्लस 27 का होल पावर 1/3। सो आफ्टर t सेकेंड्स r इतना यूनिट्स बन जाएगा बेटा। समझ आए बेटे?
Yes, ma'am. Yes, write down Yes, ma'am. fast, write down fast. Let us finish better this one. Done, ma'am. Yes, now see बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 सभी पढ़ना है प्लीज। जो आंसर नहीं बोल रहे हैं, रेगुलर में बोलती हूँ बेटा, कोई 2 बच्चे बोलते हैं, 3 बच्चे बोलते हैं, सभी इन्वॉल्व हो जाओ। जब तक आंसर नहीं दोगे आप हेजिटेट करते रहोगे, कभी बोल नहीं पाओगे और कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे आप। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20 इन ए बैंक principal increases continuously at the rate R% per year. ओके, क्वेश्चन को समझो, आपने ट्रांसलेट करना है। सो पहला सेंटेंस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट R% पर ईयर। सो जो बिगिनिंग में प्रिंसिपल है वो P ले लेना, जो बिगिनिंग जो प्रिंसिपल है। सो लेट प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल, इनिशियली द प्रिंसिपल अमाउंट इज हाउ मच P I am taking. Now as per first sentence what is given beta? कि मैम इनिशियल जो प्रिंसिपल है वो P है एंड जो जिस रेट से वो पर ईयर इंक्रीज होता है वो R है। अब मुझे R%। बच्चे ठीक है, मुझे कन्वर्ट करके बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट इज गिवन। अब सेंटेंस को पढ़ के देखो, प्रिंसिपल इंक्रीजेस मतलब P इंक्रीज हो रहा है बेटा कंटिन्यूसली एट द रेट R% पर ईयर। ओरिजिनली P था, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, अमाउंट आपका इंक्रीज होते जाएगा। सो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? ऑलरेडी यू हैव सीन रेट ऑफ चेंज बेटा, वही सेम यहाँ पे देख रहे हैं। यस बच्चे dp by dt इक्वल टू R% ऑफ P, माइंडेड R% ऑफ P। जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dp by dt कितने परसेंट, जो ओरिजिनली जो प्रिंसिपल था उसमें R% एवरी ईयर इंक्रीज होते जा रहा है। बात समझ में आए? ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। सो दैट इज dp by dt इक्वल टू R/100 इंटू P। ये आपका गिवन है बच्चे। सो अब वेरिएबल सेपरेबल करोगे, dp by p इक्वल टू R/100 इंटू dt। नाउ टेक इट इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये हो जाएगा log p
दैट इज इक्वल टू r बाई 100 इज अ कांस्टेंट, t हो जाएगा प्लस c। ये रहा आपके पास जनरल सॉल्यूशन। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इफ रुपीज 100 डबल इटसेल्फ इन 10 years, इसका मतलब 100 बिगिनिंग में था, व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, p क्या था बेटा 100, और आफ्टर 10 years ये क्या हो रहा है आपके पास डबल, इटसेल्फ डबल हो रहा है, p कितना हो गया 200। सो आपको निकालना क्या है, r निकालना है, यूजिंग दिस इनिशियल वैल्यू r निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो आपका इनिशियल वैल्यू समझ आ गया होगा। सो नाउ log p, log 100 पहला यूज कर रही हूँ बेटा, r बाई 100 ये तो 0 हो जाएगा प्लस c, दिस इम्प्लाई c का वैल्यू आ जाएगा log क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ओके फाइन। नाउ अब नेक्स्ट अनदर इनिशियल वैल्यू यूज करती हूँ। सो यहाँ पे अनदर t इक्वल टू 10 और p इक्वल टू 200 रखूँ। सो log क्या हो जाएगा 200, that is equal to r by 100 into t is a 10 and then plus c का वैल्यू आया log 100। सो log 100 को इधर से ही लेकर आओ। सो log 200 माइनस log 100 that is equal to r by क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 हो जाएगा बेटा, log m by n का फॉर्मूला लगा के that is equal to r by 10। so this implies r equal to 10 into I think log 2 का वैल्यू गिवन है बेटा here। so that is yes ma'am 0.6931 0.6931 बस, that is equal to r equal to 6.9%, 931% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा एवरी ईयर, दैट इज क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 21 सेम क्वेश्चन है बेटा, वहाँ पे r% दे रखा है, यहाँ पे 5% दे रखा है। सो वहाँ पे जब log को उधर साइड लेकर जाओगे e पावर समथिंग, तब तो e पावर समथिंग का वैल्यू दे रखा है बेटा। सो इसलिए डोंट बॉदर अबाउट इट, मतलब log c इक्वल टू आपके पास 1/2 आएगा, c इक्वल टू क्या आएगा e पावर 1/2, तभी तो वैल्यू दे रखा है समथिंग e पावर समथिंग का। सो क्वेश्चन खुद करना, यू कैन डू इट, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन। नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 22, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, मतलब बिगिनिंग में दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 22, मतलब व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, बैक्टीरिया p ले लेती हूँ, बैक्टीरिया काउंट क्या दे रखा है 1 लाख दे रखा है बिगिनिंग में। उसके बाद द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% ऑफ 1 लाख इंक्रीज हो रहा है, कब है in 2 hours, after 2 hours the bacteria is increased, already 1 लाख था, ऑलरेडी 1 लाख था और उसमें 10% इंक्रीज होगा तो 10/100 आई थिंक 10,000 है बेटा, 10,000 होगा, बोलो यस मैम। yes ma'am सो 1 लाख 10,000 हो जाएगा आफ्टर 2 hours। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चे आपके पास, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बच्चे अभी आपने ट्रांसलेट करना है, इफ द रेट ऑफ, हमने बैक्टीरिया प्रेजेंट बैक्टीरिया लिया p लिया, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज अ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया, वही प्रेजेंट बैक्टीरिया हमने p लिया। सो व्हाट इज गिवन बेटा, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज अ प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट बैक्टीरिया। वंस अगेन द रेट ऑफ क्या दे रखा ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट मतलब क्या है वन टाइम डिफरेंशिएशन dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट बैक्टीरिया। इसी प्रोपोर्शनल को रिलीव करने के लिए क्वेश्चन तो सो सिंपल है बेटा, समझने आए, इसका प्रोपोर्शनल को रिलीव करने के लिए इक्वल टू लगा के कांस्टेंट लगाते हैं, यू नो बेटर अबाउट इट। सो अब वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं इसी क्वेश्चन को भी। नाउ लिसन व्हाट आई एम डूइंग, सो दैट इज dp/p, dp/p, so that is equal to k into, क्या आ रहा है आपके पास dt, k into dt। now so that is take integration both side, so if I take integration then I will get this side is log p and this is kt plus c। अब इनिशियल वैल्यू को यूज करते हैं, इनिशियल वैल्यू ये रहा। सो नाउ सबसे पहले रखती हूँ p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 1 लाख, सपोज ये रखूँ मैं यहाँ पे, सो log 1 लाख दैट इज log 1 लाख दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, c हो जाएगा, c का वैल्यू 1 लाख आ जाएगा, log 1 लाख। नंबर 2 में t इक्वल टू 2, p इक्वल टू 1 लाख 10,000, 1 लाख 10,000, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें। सो log p दैट इज इक्वल टू p का वैल्यू दे रखा है 1 लाख 10,000,
सो दैट इज इक्वल टू 2k प्लस क्या हो जाएगा, c का वैल्यू है आपके पास log क्या होगा 1 लाख। सो log 1 लाख पे इधर साइड लेकर आओगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, log 11 रह जाएगा, बाकी ये 0 कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू वही रहेगा ना, नहीं log 11/10 रह जाएगा बेटा, isn't it? Yes ma'am. this करोगी, Yes ma'am. yes 2k। so this implies k equal to 1/2 into k का वैल्यू भी आ गया 11/10 आ गया, ये रहा k का वैल्यू। सो देयरफॉर सब कुछ उठा के हम इसी वैल्यू में रखेंगे तो log क्या हो जाएगा p, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा सर, सिंपल क्वेश्चन ही पूछा है। सो log p दैट इज इक्वल टू k का वैल्यू था 1/2 into log 11/10। इट इज सो सिंपल, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। प्लस c का वैल्यू क्या था log 1 लाख, log 1 लाख। बच्चे समझ आ रहे हैं? यस बच्चे, Yes ma'am. Yes ma'am. यस Understood ma'am. यस। नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, dy/dx इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास e⁻x + y। बच्चे इसको आप कर लो होमवर्क में, बट ब्रेक करना e⁻x into e⁻y। अब वेरिएबल सेपरेबल इजीली हो जाएगा, सो dy/e⁻y कर दो इक्वल टू e⁻x into dx, टेक द इंटीग्रेशन बोथ साइड। e⁻y को ऊपर लेकर जाना, e⁻−y हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन e⁻−y अपॉन -1 इक्वल टू ex + c। आर यू क्लियर? Yes ma'am. Yes, Yes, ma'am. do the solves homework. Note down beta fast, hurry up. Ma'am, done. Yes, everybody have done better. So homogeneous we will see tomorrow. Now bache listen, everybody knows about this new education policy 2020. What is the system, you know about it now? The completely they are changing system, that is a 5 + 3 + 3 + 4 means the school duration they are making 15 years instead of 14 years. Means Anganwadi, from start from Anganwadi to that is they are saying 9th 10th 11th 12th is 4 years, that is secondary, not senior secondary. Now this complete new education policy is replacing rote learning system into skill development. So बच्चे आपका suggestions most important है मेरे लिए. You do one thing, you have very innovative ideas. आपको पता है इसी जर्नी में, ये जो स्कूल जर्नी में आपने क्या मिस किया, तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है। सो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या होना चाहिए इम्प्रूवमेंट, कौन सी एरिया में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। यू शुड हैव हेल्दी डिस्कशन विद योर टीचर्स,
so that I can send your recommendation to CBSE. So please keep on discuss with your class teacher and subject teacher. I will inform to them, they will discuss with you. So you first start think what creativity, what innovative we are lacking nowadays. So what we can do further. So please, I need your valuable suggestion. Okay, so thank you bache, thank you. Okay ma'am. Thank you. Thank you ma'am. Okay, bye. Bye ma'am. Bye.